بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی اور ایک جھیل اور مچھلی کا واقعہ سنائیں گے۔ بانجھ عورت کا بچہ کیسے پیدا ہوا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کیا نکلا، آئیے یہ خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ کسی اونچے پہاڑ پر ایک اللہ والے عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کو لوگ پہاڑ والے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ درویش یعنی اللہ والے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ نہ انہیں بھوک کی فکر تھی، نہ پیاس کا غم۔ جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے، جب پلا دیتا تو پی لیتے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ ایک مچھیرا اس ندی میں جال ڈالتا اور مچھلیاں پکڑتا۔ وہ غیر مسلم مچھیرا تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کی مدد کیا کرتا تھا، اور دونوں باپ بیٹے مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر کسی دن مچھلی جال میں نہیں پھنستی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بت کی پوجا کرتے اور کہتے، اے ہمارے خدا، ہمارے حالات کو بدل دے، تیرے سوا ہماری کون سننے والا ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت سی مچھلیاں پھنسے، ہماری بھی زندگی عیش کے ساتھ گزرے۔ اب کچھ ہی دور اس غیر مسلم کا ایک مسلمان دوست بھی رہا کرتا تھا جو کسان تھا۔ وہ بھی بہت غریب تھا۔ غیر مسلم مچھیرا کبھی کبھی ایک مچھلی اس کو بھی دے دیا کرتا تھا۔ وہ کسان بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی روتی اور دعائیں کرتی، یا اللہ مجھے اولاد رینا عطا فرما دے، لیکن اب تک انہیں کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ مجھے تو بانجھ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن تو ہم جیسوں کی آواز بھی سننے والا ہے۔ ناظرین، اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کو پتہ چلا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درویش رہتے ہیں۔ ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد رینا یعنی بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم لوگ اس درویش بابا یعنی پہاڑ والے بابا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا، نہیں، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ تم کو جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ میں کسی درویش بابا، پیر، فقیر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ پیارے ناظرین، اس کی بیوی بھی تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہی تھی۔ وہ تو بس ان فقیر بابا کے پاس دعا کروانے کے لیے جا رہی تھی تاکہ وہ اس عورت کے لیے دعا کر دیں اور اللہ اسے اولاد عطا فرما دے۔ بیوی اپنی اس بات پر اڑی رہی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے بات چیت تک کرنی بند کر دی، لیکن دل میں دعا کرتی رہی، یا اللہ کچھ ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں کسی نہ کسی طرح پہاڑ والے بابا کے پاس پہنچ کر ایک بار ان سے دعا کروا لوں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، منت مانگی، آج اگر میرے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں اس کو پکا کر درویش اللہ والے کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آج اگر ایسا ہوا تو میں ان کو مچھلی کھلاؤں گی تاکہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ میرے لیے دعا کرتی۔ یہ ایک عورت کی تمنا تھی، جبکہ اللہ والوں کی کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی ہیرے جواہرات یا مچھلی یا عمدہ کھانا لے کر آئے۔ وہ تو ہر کسی کی دعا کو اپنی دعا بنا لیتے ہیں۔ یہاں وہ غیر مسلم مچھیرا رہ بھی غربت کے ہاتھوں مرا جا رہا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے رہے، لیکن مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹا بھی باپ سے کہتا، بابا کب ہماری زندگی بدلے گی؟ ایسا کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ روزانہ ایک ایک مچھلی پکڑنے کے بجائے ہمارے جال میں ایک ساتھ ہزاروں مچھلیاں پھنس جائیں اور ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، بیٹا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا۔ ادھر اس درویش کو خواب کی دنیا میں اس کے مچھیرے کے حال معلوم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کے قریب آئے اور لوگوں سے معلوم کیا کہ فلاں مچھیرا کہاں رہتا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی جھونپڑی کی طرف اشارہ کر دیا کہ لو، وہ رہی اس کی جھونپڑی، وہیں پر وہ رہتا ہے۔ اب وہ اللہ والے اللہ کا نام لے کر وہاں جا پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے آواز لگائی، میں ایک فقیر ہوں، درویش ہوں، کیا کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ مچھیرا بولا، ہم تو خود فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، بابا تم کیا بات کرتے ہو؟ کھانے کی تمہیں میں ایک روٹی تو کیا ایک نوالا بھی نہیں دے سکتا؟ میں نے خود بھی کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اچھا اب باہر تو آ جاؤ، اللہ والے نے آواز دے کر کہا۔ مچھیرا باہر نکل کر آیا۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو اپنے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھ کر مچھیرے نے کہا، بابا میں بہت پریشان حال ہوں، مچھلیاں جال میں پھنستی ہی نہیں ہیں۔ اللہ والے نے مشورے کی بات سنی تو بولے، بیٹا پتھر کے بت سے مانگے گا تو کیا پائے گا؟ اصل خدا کی ذات سے مانگ، اللہ تجھے سب کچھ عطا کرے گا۔ سب سے بڑی چیز بیٹا اطمینان اور سکون ہے۔ مچھیرا بولا، کون خدا؟ بابا آپ بت کی بات کر رہے ہو نا، جس کی میرے باپ دادا پردادا سب پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔
अल्लाह वाले बोले, नहीं, वो जो एक है, सबको पालने वाला है, जिसने तुझे और मुझे इस पूरी दुनिया को पैदा किया है, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो सबको देता है, सबका पालनहार है। हकीकत में वही एक है, चाहे तो इसको मान या ना मान, वो हर एक को रिज़्क अता करता है। लेकिन जो इसको मान लेते हैं, इनकी तो किस्मत ही बन जाती है, इनकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। बुजुर्ग की बातें सुनकर वो मछेरा हैरत से बोला, अच्छा, तो क्या ऐसा है आपका खुदा? बाबा, आज मैं जाल फेंकूंगा, नदी में मेरे जाल में इतनी मछलियाँ फंसेंगी कि कभी मेरा जाल खाली ना हो। अल्लाह के वली ने कहा, तो लो अल्लाह का नाम और जाओ, जाकर जाल फेंको। मछेरे ने कहा कि अगर आप सच में खुदा की इबादत करते हैं, इसने मेरी फरियाद सुन ली तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। फिर मछेरे ने अल्लाह वाले के कहने पर नदी में जाल डाल दिया। अल्लाह वाले बोले, मैं चलता हूँ, जो खबर हो मुझे दे देना, मेरी इबादत का वक्त हो गया है। और हाँ, मछली के पेट से जो कुछ भी मिले इसे ले जाकर सबसे बड़े जड़ी बूटी वाले के ताजिर को दिखा देना। इसके बाद वो दरवेश दोबारा पहाड़ पर चले गए। अब यहाँ वो गैर मुस्लिम मछेरा अल्लाह वाले पर भरोसा करके जाल पानी में डालकर बैठा रहा। दिन भर के इंतज़ार के बाद आखिरकार 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ इसके हाथ लग गईं। इन्हें देखकर वो बड़ा खुश हुआ। इसने अपने बेटे से कहा, ये इस दरवेश अल्लाह वाले की दुआ से हुआ होगा। एक मछली मैं अपने बेटे और अपने लिए रख लेता हूँ और एक ले जाकर फरोख्त कर देता हूँ। अभी वो अपना जाल समेट ही रहा था कि एक चील तेज़ी के साथ जब आई और अपने पंजों में एक मछली दबाकर उड़ गई। मछेरे ने जब ये देखा तो इससे बड़ा अफसोस हुआ। लो, इतनी मेहनत से सारा दिन बैठकर मैंने मछली को पकड़ा, आज मछली जाल में फंसी, अब मैं क्या खाऊंगा, क्या बेचूंगा? बेटा बोला, बाबा अब क्या होगा? मछेरा बोला, कोई बात नहीं बेटा, इस अल्लाह वाले ने कहा था ज़रूर कोई ना कोई मसलहत होगी। हर काम में मेरा मन कहता है कि क्या आज हमें खुशी मिलकर रहेगी। बेटा बोला, पर बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है। मछेरा बोला, तो चलो बेटा, इसको बाज़ार में नहीं बेचते, इसी मछली को काट कर पका लेते हैं और हम दोनों खा लेंगे। वो मछली लेकर अपने घर आ गए। अब जो मछली को काटा तो इसके अंदर से कोई हीरे जवाहरात तो नहीं निकले, लेकिन एक लाल रंग का बीज निकला। बेटे ने कहा, बाबा ये कैसा बीज है? वो इसको देखने ही वाला था कि बाप को अचानक याद आ गया कि इसने कहा, रुको, अल्लाह वाले ने कहा था कि मछली के पेट के अंदर से जो कुछ भी मिले इसको फेंकना नहीं, बल्कि इसको ले जाकर जड़ी बूटी वाले ताजिर की दुकान में दिखाना। अब बेटे को साथ लेकर वो बड़े ताजिर के पास पहुंचा। जैसे ही इसने इसे वो लाल रंग का बीज दिखाया, वो कहने लगा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मछेरा बोला, ये हमें मछली के पेट के अंदर से मिला है। तो इस ताजिर ने कहा कि ये तो बेशक कीमती जड़ी बूटी है, ये तो लाखों में बिका करती है। रईस लोग इसे खरीदते हैं क्योंकि इससे इस बीमारी का इलाज किया जाता है जो बीमारी लाइलाज होती है। ये तुम मुझे दे दो, बताओ किस कीमत में बेचोगे? मछेरा ये सब कुछ सुनकर खुश हो गया। अब इसने कहा, आप जो कीमत लगा दें। वो ताजिर बहुत अमीर रईस आदमी था। इसने कहा कि चलो ठीक है, 1,00,000 दिरहम में ये बीज तो मुझे दे दो। मछेरा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। इसने 2,00,000 दिरहम लिए, बेटे को खुशखबरी दी। सही कहा था ना इन अल्लाह वाले ने, चलो अब हमें इनसे मुलाकात करनी चाहिए। अब मोहतरम नाज़रीन, आगे सुनिए कि वो चील इस मछली को लेकर कहाँ गई थी। चील इस मछली को उठाकर उड़ती हुई एक बहुत ऊंची पहाड़ी की तरफ जा पहुंची, लेकिन एक दूसरी चील ने इससे मछली को छीनने की कोशिश की, इस पर हमला कर दिया। अब दोनों चीलों में छीना झपटी होने लगी और मछली चील के पंजों से फिसलकर पहाड़ी पर रहने वाले इस अल्लाह के वली की झोंपड़ी के सामने आकर गिर पड़ी। दरवेश अल्लाह के वली जो कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे, ज़मीन पर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ को सुनकर वो झोंपड़ी से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक मछली थी। मछली को आपने उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। मैंने तुझसे मछली ही तो मांगी थी, मगर तुझको तो मालूम है मेरे पास मछली पकाने के लिए ना तो तेल है ना मसाला है। मुझे तो पकी पकाई मछली चाहिए थी, मुझे कच्ची मछली नहीं चाहिए थी। मैं ये मछली नहीं खा सकता, इसे वापस मंगवा ले और मुझे पकी हुई मछली भिजवा दे। ये कहकर अल्लाह के वली अपनी झोंपड़ी में वापस चले गए और थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा बाहर आए तो मछली वहाँ से गायब थी। इसे एक चील उठाकर ले गई थी और वो दूसरी चीज़ों से बचती हुई इससे मछली को छीनने के लिए इसका पीछा कर रही थी। पहाड़ी के नीचे की तरफ वो उड़ रही थी, लेकिन दोनों चीलों ने इस पर फिर से हमला कर दिया।
और इससे मछली को छीनने की कोशिश की। इस लड़ाई झगड़े में चील के पंजों से वो मछली निकलकर इस गरीब किसान के आंगन में जा गिरी, जिसकी बीवी ने दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे आज अगर मछली मिल जाए तो मैं इसको पकाऊंगी और अल्लाह के वली को खिलाऊंगी। अब किसान की बीवी ने दौड़कर इस मछली को उठा लिया और किसान से बोली, मैं तुमसे कितने दिनों से कह रही थी ना कि मेरा दिल मछली खाने को चाह रहा है, तुमने तो लाकर नहीं दिया। आज अल्लाह ताला ने मेरी खातिर इंतज़ाम कर दिया। मैंने मन्नत मांगी थी, जब भी मछली पकाऊंगी पहाड़ी वाले अल्लाह वाले को लेकर जाकर ज़रूर खिलाऊंगी। अब मैं मसाला पीस कर मछली को तैयार करती हूँ, तुम बाबा को जाकर दे आना और कहना कि बाबा हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें औलाद नरीना अता करे, मैं भांज न रहूं। किसान अपनी बीवी की बातें सुनकर कहने लगा, अजीब बातें करती हो। इसने कहा, मछली आ गई है ना, मैंने तुमसे तो नहीं मांगा था। अब किसान की बीवी ने मछली को तैयार किया। इतने में वो किसान का मछेरा दोस्त भी वहां पर आ गया, क्योंकि इसको किसान से मुलाकात करनी थी। जब वो वहां पर पहुंचा, इसे मछली के पकने की खुशबू आने लगी। किसान ने अपने मछेरे दोस्त से कहा, यार अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, अच्छे वक्त पर आए हो। आज मेरी बीवी ने मछली पकाई है, खाना खा कर जाना। मछेरा हैरान होकर पूछने लगा, मगर तुमको मछली कहाँ से मिली है? मैं ही हमेशा तुमको मछली लाकर देता था, आज तो मैंने तुम्हें मछली लाकर भी नहीं दी। किसान बोला, बस यूं समझ लो अल्लाह ताला ने आसमान से टपका दिया हमारे आंगन में। ये सुनकर मछेरा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अच्छा तो ये मछली वहां से आई है। अब मछेरे ने कहा, क्या तुम पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहते हो? इसने कहा, हाँ भाई, मेरी बीवी ने तो जिद कर रखी है, अब इसकी जिद के आगे मुझे हार माननी ही पड़ेगी। इसने मन्नत मांगी है और इसकी मन्नत को मैं तोड़ भी नहीं सकता। इसने नीयत की है ना, तो ये नीयत पूरी करनी पड़ेगी। वो कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे भी इन्हीं बाबा से मुलाकात करनी है। किसान ने कहा, तुम इनको कैसे जानते हो? इसने कहा, वहीं जाकर तुम्हें पता चलेगा। जब मछली बन गई, किसान पहाड़ी वाले बाबा को मछली देने के लिए गया और वो गैर मुस्लिम मछेरा भी इसके साथ हो गया। किसान ने पकी हुई मछली का प्याला अल्लाह वाले को पेश किया और दुआ की दरख्वास्त की, बाबा दुआ करें, मेरी बीवी ने आपके लिए खसूसी तौर पर यह मछली भिजवाई है। दरवेश अल्लाह वाले ने इन दोनों को देखा और पूछा, मछली कहाँ से आई? किसान ने कहा कि आसमान से गिरी। अब दरवेश अल्लाह वाले ने यूं ही बनकर मजाक के तौर पर मछेरे से पूछा, तुम कौन हो? मछेरे ने कहा, बाबा आप मुझे नहीं पहचानते, आज सुबह ही तो आपसे मुलाकात की थी मैंने, और आप ही की दुआ से मुझे वो मिल गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा आपकी दुआ से मेरी ज़िंदगी बदल गई, अल्लाह पर यकीन करके मैं नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। दरवेश अल्लाह वाले ने सारा माजरा सुनकर कहा, हम सब ने मछली खाने की ख्वाहिश की, जो अब इनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। मछेरा बोला, मैं तो पहले ही आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी वजह से आज मैं और मेरा बेटा बहुत अमीर हो चुके हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि खुदा कौन है, तुम जिसकी पूजा करते हो ना, वो एक पत्थर का बुत है, ना वो तुम्हें सुन सकता है, ना तुम्हें देख सकता है, ना ही तुम्हें कुछ दे सकता है, लेकिन तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत है तुम्हारे बुत पर कि बेशक देने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारा बुत तुम्हें दे रहा है। असल ज़ात तो वो है जो नज़र नहीं आती है। अब तुम देखो, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे मछली खानी है, वो भी पकी हुई। इस किसान की बीवी के दिल में आया अपने बेटे के लिए दुआ करवाई जाए और मेरे लिए पकी हुई मछली भिजवाई। चील किस तरह तुम्हारे पास से मछली को लेकर उड़ी और किसान की बीवी के पास वो मछली आ गई। मछली इनके घर के आंगन में गिरी, इसने मछली को पकाया और हम तक ये मछली तैयार होकर पहुंच गई। अब बताओ, ये कौन सी ज़ात है जो ये सारा काम अंजाम दे रही है? ना तुम्हारी बात इस किसान की बीवी तक पहुंची, ना किसान की बीवी ने मुझसे ऐसी कोई बात कही थी, लेकिन वो जो ज़ात है जो हम सब के दरमियान मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है, जो लामकां पर है, जो हमारे बहुत करीब है, वो हम सबको सुनता है, जानता है, हमारी हाजतों को पूरा फरमाता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था, मैं इस खुदा की इबादत करता हूँ, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। अब क्या तुम कलमा पढ़ना पसंद करोगे? इसने कहा, क्यों नहीं बाबा, मैं तो इसी वक्त मुसलमान हो जाता हूँ। अगर मेरे सामने आप होते, मैं आपके सामने कलमा पढ़ता हूँ, आपके हाथों पर बैत करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। किसान ने ये मंजर देखा तो इसके दिल में अल्लाह वाले की कदर व मंजिलत बढ़ गई। इसने कहा, सच में मैंने अपनी बीवी से कहा था मैं किसी अल्लाह वाले को नहीं मानता, लेकिन आज आपके ही यकीन को देखकर मैं इस बात को मान गया। बाबा हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद बनाए। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हारी मछली खाने के बाद तुम्हारे लिए दुआ नहीं की, मैं इससे पहले ही तुम्हारे लिए दुआ कर चुका हूँ, लेकिन अल्लाह ताला को सही वक्त पता है कि किस इंसान को कौन सी चीज़ किस वक्त देना है। गैब का इल्म सिर्फ इसके पास है, हम तो बस इसके अदना से बंदे हैं, हम अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं।
जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें ज़रूर खुशखबरी मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। जब किसान अपने घर पहुंचा, इसकी बीवी ने कहा कि आपने अल्लाह वाले से दुआ करवा ली? तो कहने लगा, हाँ मैंने दुआ करवा ली, और एक खुशखबरी है कि अल्लाह वाले कहते हैं हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द साहिब औलाद हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें बेटे जैसी अजीम नेमत अता करेगा, या बेटी भी अता होगी तो मैं इस पर भी खुश होऊंगा। बीवी ने कहा, आमीन, मैं भी खुश हूँ। और इसने कहा, तुम जानती हो मेरा मछेरा दोस्त अब मुसलमान हो गया है, क्योंकि अल्लाह वाले ने इसकी मदद की और इसके यहाँ 2 लाख दिरहम आ गए। सिर्फ एक मछली के अंदर मौजूद एक नन्ही से बीज के जरिए इसकी ज़िंदगी बदल गई। सुबहान अल्लाह। कुछ ही दिनों में किसान और इसकी बीवी को भी खुशखबरी मिल गई और अल्लाह पाक ने इन्हें साहिब औलाद कर दिया। जिसको लोग बांझ कहकर चिढ़ाया करते थे, आज वह एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। अल्लाह वाले के यकीन ने इन्हें अल्लाह के करीब कर दिया। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह फिर हमारी और आपकी एक नई वीडियो के ज़रिए मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें।